Good morning, all of you. Morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning, student. First of all students mute yourself. पहले आप म्यूट हो जाइए. अभी भी आवाज आ रही है, म्यूट हो जाइए. एंड स्टूडेंट्स, I have already written here today's topic. Today's topic is, आपको दिख रहा होगा, आप पढ़ के बता सकते हैं. Today's topic is Pairs of angles. pairs of angles. Okay. Today's topic, pairs of angle. But all of you know, it's my hobby, it's my habit. Before starting the today's topic, I have discussed about previous topic. Previous topic पे भी हम डिस्कस करते हैं, पता है ना? Yes, sir. So first I want to write down here the topic that I have discussed in yesterday class. Previous topic. Only written a topic. हम केवल टॉपिक लिखेंगे. ऑल स्टूडेंट्स मस्ट राइट दीज टॉपिक्स इन योर रफ कॉपी नाउ. आपको सिर्फ ये टॉपिक रफ कॉपी में लिखना है, ओनली फॉर द पर्पस ऑफ रिवीजन के लिए. तो प्रीवियस टॉपिक, कल का टॉपिक मेरा क्या था? Definition of angle. ओके, यू स्टॉप. Types of. ओके. definition of लाइन सेगमेंट. पहले मैंने लाइन सेगमेंट का भी डिफिनीशन कल कराया था. लाइन सेगमेंट्स. Yes, sir. लाइन सेगमेंट्स एंड एंगल्स. लाइन सेगमेंट्स एंड एंगल्स. सेकेंड पॉइंट, types of angles. Types of angles. Types of angle. How many types of angles that I have discussed in yesterday class? 7. 7 types. 7 types that I have discussed. Can you name, Jayant, can you Yes, sir. name the 7 types of angles that I have discussed in yesterday class? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Sir, zero angle, obtuse angle, right angle, straight angle, reflex angle, and complete angle. Now, this question goes to other student. That means I want to this question अदर स्टूडेंट, दूसरे स्टूडेंट्स को भी मिलना चाहिए. अनिका श्री. नो. नेक्स्ट, अदर फ्रॉम गर्ल्स साइड. अदर स्टूडेंट्स फ्रॉम गर्ल्स साइड. Other students from girls side. Tanya, Yes, sir. can you give the all the name of all types of angles? Yes, sir. Okay. Zero angle equal to 0 degree. हाँ. Acute angle हाँ. between 0 and 90 degree. हाँ. Obtuse angle 90 degree and 180 degree. ठीक है. Right angle equal to 90 degree. Straight angle equal to 180 degree. ओके, वेरी गुड. देखिए स्टूडेंट्स, माय क्वेश्चन इज ओनली द
name of 7 types, but student describe with condition. टाइप्स विथ कंडीशन. मैंने सिर्फ 7 टाइप्स पूछा, लेकिन स्टूडेंट्स जो हैं 7 टाइप्स विथ कंडीशन बताए. गुड. नाउ अदर टॉपिक. अभिज्ञान सिन्हा. अभिज्ञान सिन्हा अदर टॉपिक क्या डिस्कस हुआ था? आफ्टर टाइप्स ऑफ एंगल्स. उसके बाद सर उसके बाद चलिए, आपको याद नहीं है, आपको याद नहीं है. उसके कोई बाद नहीं हुआ था सर. हुआ था, हुआ था. We use protector to measure construct. मेजर और कंस्ट्रक्ट करते हैं हम लोग प्रोटेक्टर का यूज करके. स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एंगल इज डिग्री. हुआ था या नहीं? हुआ था. तो फिर यही तो मैं पूछ रहा हूं. एंड इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल. यस और नो? यस सर. फिर इंटीरियर एंड एक्सटीरियर. इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एंड एंगल्स. यानी एंगल्स का इंटीरियर और एक्सटीरियर क्या होता है, इस पे भी हुआ था. एंगुलर रीजन. एंगुलर रीजन. सॉल्यूशन ऑफ सम क्वेश्चन ऑफ वर्कशीट 1. सॉल्यूशन ऑफ सम क्वेश्चन. solution of some question of worksheet 1, and worksheet 1 was your homework. worksheet 1 आपका होमवर्क भी था. yes or no? यस सर. So all students today must write these points for revision. If you have not done, if you have not completed, you will complete and do it today. सारे स्टूडेंट्स इस पॉइंट को नोट करें रफ में. जो स्टूडेंट्स का कंप्लीट नहीं हुआ होगा, डू नहीं किए होंगे, नहीं सॉल्व किए होंगे, वो करेंगे. दिस इज द पॉइंट्स ऑफ previous topic that I have discussed in yesterday class. Now I am going to today's topic. Okay. अब मुझे आज के टॉपिक पे आना चाहिए या नहीं जयंत? यस सर. ज़्यादा यस सर. So all of you ready to come of today's topic? यस सर. Okay, mute yourself. सर. Mute yourself. Your video will be on. आपका वीडियो ऑन होना चाहिए and your voice must mute. If you have need to raise some questions, doubts, then you raise your hands. Now today's topic, pairs of angles. Pair. What is the meaning of pair? What is the meaning of pair? Harsraj. Harsraj, what is the meaning of pair? सर Two objects, two things. First
point adjacent angles, adjacent angles. In adjacent angles, first of all you see the diagram. पहले आप डायग्राम से समझिए. Angle. In yesterday class we have discussed when two arms meet at a point. जब एक ही पॉइंट पे, सेम पॉइंट पे टू आर्म मीट होते हैं तो एंगल होता है. And here topic pair of angle, that means we need to form here two angle. हमको यहाँ दो एंगल बनाने की जरूरत है, लेकिन वर्टेक्स एक ही होने चाहिए, सेम वर्टेक्स. दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स. तो सेम वर्टेक्स पे आइए हम एक और बनाए. अब हमारे पास x, ये एंगल का नाम मैंने x दिया और इसका नाम मैंने y दिया. ठीक है. दीज लाइन कॉल a, दीज लाइन कॉल b, दीज लाइन कॉल c. अब आप देखिए एंगल x एंड y, आपके पास दो एंगल है. एंगल x में कौन कौन सा साइड यूज हो रहा है? एंगल x के लिए कौन कौन साइड यूज हो रहा है? एंगल x के लिए O, इसको B करते हैं, OB एंड OC, ये दो साइड यूज हुआ एंगल x के लिए. अब आइए एंगल y के लिए. फिर एंगल y में हमारा ये साइड यूज हो रहा है, बीच वाला साइड, दैट मीन्स OB and OA. Here we observe that OB is common for both angle. ये OB जो है, ये OB दोनों ही एंगल में यूज हो रहा है. अब आप ये समझ गए कि टू एंगल्स के लिए वर्टेक्स तो एक ही है. सो एडजेसेंट एंगल्स का पहला कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन here we retain as it is, two angles are said to be, two angles are said to be adjacent if. दो एंगल एडजेसेंट कब होगा? आइए पहला पॉइंट, दे हैव कॉमन वर्टेक्स, दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स. आप देख रहे हैं ये वर्टेक्स जो O है, ये दोनों एंगल के लिए यूज हो रहा है. तो दे हैव कॉमन वर्टेक्स. अब नंबर 2 पॉइंट, दे हैव अ कॉमन आर्म, दे हैव अ कॉमन आर्म्स. अब यहां पे आर्म, इन दिस फिगर देयर आर 3 आर्म्स यूज. इस फिगर में 3 आर्म यूज हो रहा है, बट OB आर्म जो है, दिस इज द कॉमन फॉर बोथ एंगल. x के लिए भी यूज हो रहा है और y एंगल के लिए भी यूज हो रहा है. सो OB इज कॉल्ड कॉमन आर्म. इसको हम कॉमन आर्म बोलते हैं. और जो कॉमन आर्म नहीं होता है उसको हम नन कॉमन आर्म बोलते हैं, नन कॉमन आर्म. तो क्या है कि दे हैव अ कॉमन आर्म. देखिए कॉमन आर्म है. थर्ड पॉइंट,
अदर टू नन कॉमन आर्म, देखिए नन कॉमन आर्म जो है वह कॉमन आर्म के अपोजिट साइड में है, एक अपर है तो एक बिलो है, अपोजिट है। तो हम इस कंडीशन को कैसे लिखेंगे, तो द अदर टू नन कॉमन आर्म, द अदर स्टूडेंट्स यू ऑब्जर्व दैट इन एडजेसेंट एंगल्स हैविंग टू एंगल्स, दो पेयर, एक पेयर यानी टू एंगल्स के लिए हो रहा है, टू एंगल्स में यूज हो रहा है वन वर्टेक्स एंड थ्री आर्म्स इन विच वन आर्म्स इज कॉमन एंड अदर टू आर्म्स आर नॉन कॉमन। तो टू आर्म्स जो नॉन कॉमन है वह कॉमन आर्म के अपोजिट में है। दिस इज रिटेन हेयर, द अदर टू नॉन कॉमन arms lie on the opposite sides of किसके अपोजिट में है, तो कॉमन आर्म के अपोजिट में है। सो वी रिटेन हेयर अपोजिट साइड्स ऑफ कॉमन आर्म, कॉमन आर्म। स्टूडेंट अभी आप म्यूट नहीं है, अनम्यूट हैं। इन द टॉपिक ऑफ पेयर ऑफ एंगल्स, एडजेसेंट एंगल इज द फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव नीड टू डिस्कस विथ डायग्राम। मैंने एक डायग्राम बनाया। इन दिस डायग्राम हैविंग टू एंगल एक्स एंड वाई, एंड एक्स एंड वाई टू एंगल्स दैट्स यूजिंग वन वर्टेक्स, दैट मीन्स एक ही वर्टेक्स पे दोनों एंगल है, एंड वन कॉमन आर्म है, अदर टू आर्म्स आर नॉन कॉमन। सो दीज टू एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट। ऐसे दो एंगल को हम एडजेसेंट कहेंगे जिस दो एंगल्स का एक कॉमन आर्म हो, एक वर्टेक्स हो। देखिए तीन कंडीशन होता है एडजेसेंट का। तो फर्स्ट कंडीशन, दे हैव कॉमन वर्टेक्स, दे हैव कॉमन आर्म, एंड थर्ड पॉइंट, द अदर टू नॉन कॉमन आर्म, जो नॉन कॉमन आर्म है डेट्स लाई ऑन द अपोजिट साइड ऑफ कॉमन आर्म, कॉमन आर्म के अपोजिट साइड है। बस यही आपका एडजेसेंट एंगल्स का कंडीशन है। एडजेसेंट एंगल्स का यही कंडीशन है। एडजेसेंट एंगल्स में नॉन कॉमन आर्म जो है यदि स्ट्रेट हो जाता है, दैट मीन्स 180 डिग्री एंगल बनाता है, जो नॉन कॉमन आर्म है वो यदि स्ट्रेट हो जाएगा, देन दिस इज कॉल्ड लीनियर पेयर। तब उसको हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर। लीनियर पेयर। ओके ओके, तो लीनियर पेयर जो बोलेंगे, सो लीनियर पेयर इज माय सेकेंड टॉपिक। आज का सेकेंड टॉपिक है लीनियर पेयर। क्या इसको मिटा दें या अभी आप लिख रहे हैं? नो सर, मिटा दीजिए। कौन सा इरेज कर दीजिए। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छे कंडीशन में पढ़ाई हो रही है। आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे, रफ में प्रैक्टिस करेंगे। The condition of linear pair is just similar to condition of adjacent angles, बस one point is different, one point ही different है, and all the rest points are similar। आइए देखते हैं। जैसा कि आपको पता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई डिस्कस विद डायग्राम विथ एग्जाम्पल। पहले कोई भी डिफिनीशन, कोई भी टर्म के लिए हम आपको डिफिनीशन से पहले डायग्राम बताते हैं, एग्जाम्पल समझाते हैं, तब अपने आप डिफिनीशन हो जा रहा है।
my second point is linear pair. लीनियर पेयर, यहां भी दो एंगल की ही बात हो रही है. आइए एक डायग्राम बनाते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, here point O and one side A, other side B and a line C. आप देख रहे हैं here, this is the common arm and this is the non common arm. ये नन कॉमन आर्म है. ओ भी नन कॉमन आर्म, ओ ए भी जो है या नन कॉमन आर्म है. एंड दिस इज कॉमन आर्म. वन एंगल, दैट मीन्स हियर वन एंगल, नेम हम इसका नेम एक्स रखते हैं, एंड अदर एंगल वाई, इसका हम वाई रखते हैं. अब आप देख रहे होंगे सेम कंडीशन है एडजेसेंट का. टू एंगल फॉर्मिंग हो रहा है इस फिगर में. फर्स्ट एंगल एक्स, अदर एंगल वाई, बोथ एंगल हैविंग अ सेम वर्टेक्स. एक ही वर्टेक्स है दोनों एंगल के लिए, दैट वर्टेक्स इज कॉल्ड ओ. ये जो OC साइड है, ये OC साइड हमारा कॉमन आर्म है, बिकॉज इट्स यूज फॉर एंगल ए एंड ऑल्सो फॉर एंगल वाई. यही साइड जो है एक्स के लिए भी यूज हो रहा है, वाई के लिए हो रहा है. बट OB एंड OA आर नॉन कॉमन आर्म. ये एडजेसेंट एंगल से सिमिलर है, बस एक डिफरेंस है कि नॉन कॉमन आर्म जो है वो 180 फॉर्म कर रहा है, यानी 180 बना रहा है. 180 फॉर्मिंग हो रहा है, 180 बना रहा है. सो आइए हम इसका इस तरीके से डिफिनेशन लिख सकते हैं. लीनियर पेयर में इस एंगल को हम एडजेसेंट तो बोलते ही हैं. जब एक ही वर्टेक्स पे दो एंगल बनता है तो वो तो एडजेसेंट होगा ही, लेकिन यदि नॉन कॉमन आर्म 180 हो गया तो लीनियर पेयर, अदरवाइज वो एडजेसेंट है. सो वी रिटेन हेयर टू एडजेसेंट एंगल, टू adjacent angles form a linear pair. Two adjacent angles form a linear pair. ये मैंने ये जो है ये इसके लिए यूज किया था, आप कंफ्यूज नहीं होंगे. इसके लिए यूज हुआ था, ये नॉन कॉमन आर्म है इसके लिए. तो टू एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म अ लीनियर पेयर इफ देयर नॉन कॉमन आर्म. जो नॉन कॉमन आर्म है वो क्या होना चाहिए? नॉन कॉमन आर्म्स फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन. इसको आप ब्रैकेट में 180 भी लिख सकते हैं. यू कैन राइट 180 ऑल्सो. Two adjacent angles form a linear pair if their non-common arm form a straight line. ठीक है, हम यहाँ पे आपको एक बार अनम्यूट कर रहे हैं. हाँ स्टूडेंट्स, नाउ यू अनम्यूटेड. इफ यू हैव डाउट देन यू आस्क नाउ. यदि आपको डाउट है तो अभी पूछिए. बस एक ही डिफरेंस है एडजेसेंट और लीनियर पेयर में, ओनली वन डिफरेंस. दीज नॉन कॉमन आर मेक 180 डिग्री, मेक स्ट्रेट लाइन, देन कॉल लीनियर पेयर. अगर यहाँ पे दोनों एंगल का 180 बन रहा है तो ये लीनियर पेयर हो जाएगा, अदरवाइज दिस एडजेसेंट. है ना अभिज्ञान सिन्हा?
Yes, sir. ओके। अब यहाँ पे हम एक पॉइंट लिखाएंगे कि कोई भी लीनियर पेयर एडजेसेंट हो सकता है, लेकिन एडजेसेंट जो है वह कोई जरूरी नहीं कि वो लीनियर होगा, है ना ये बात? Yes, sir. हाँ, तो आइए वो पॉइंट भी आप लिख लीजिए, वो मेन पॉइंट है। क्या है वो पॉइंट? ऑल एंगल्स फॉर्मिंग all angles forming linear pair are adjacent माने जितना भी लीनियर पेयर है वो एडजेसेंट फॉर्म हो सकता है। जितना भी लीनियर पेयर बनता है वो तो एडजेसेंट हो सकता है, बट ऑल पेयर ऑफ एडजेसेंट but all pair of adjacent are not linear pair। हम यहाँ पे ये बात पहले से आपको कह चुके हैं कि जितने भी लीनियर पेयर बनते हैं वो एडजेसेंट हो सकते हैं, बट ऑल एडजेसेंट आर नॉट लीनियर पेयर। नेक्स्ट पॉइंट, अब आप बता सकते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है? टुडेज नेक्स्ट पॉइंट Vertically opposite हाँ angles. हाँ, वेरी गुड। टुडेज आज का आपका होमवर्क WL आप लिख लें, WL यानी राइट एंड लर्न डिफिनीशन एंड डू वर्कशीट 1। राइट एंड लर्न डिफिनीशन एंड डू वर्कशीट 1। वर्टिकल अपोजिट एंगल में क्या होता है? वर्टिकल अपोजिट एंगल, कंप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, ये 3 पॉइंट्स हैं। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, जयंत बोलिए वर्टिकल अपोजिट एंगल्स क्या होता है? एनी स्टूडेंट्स, वर्टिकल अपोजिट एंगल? वर्टिकल अपोजिट एंगल में जब दो लाइन आपस में क्रॉस करते हैं तो जो एंगल बनता है वो वर्टिकल अपोजिट एंगल यानी 4 एंगल बन रहा है। तो जो सामने का हाँ सर हम इसका डेफिनेशन बोलिए। Two angles formed by ओनली वन स्टूडेंट lines having no common ओनली वन स्टूडेंट्स कैन से, एक ही बच्चा बोलिए। are called two angles formed by two intersecting lines having no common arm but having a common vertex are called vertically opposite angle. हाँ, वेरी गुड। अच्छा, Two angles formed by two intersecting lines having no common arms but a common vertex are called vertically opposite angles. ठीक है। सर मैं बोलूं? नेम बताइए।
नेम स्टूडेंट्स फर्स्ट say your name, then give the answer. सर सार्थक। सार्थक, Yes, sir. vertically opposite angles. Two angles formed by using intersecting lines having no common arm but having a common vertex are called vertically opposite angles. हाँ, सिंपल सा बात है कि यदि हम लेटर अल्फाबेट एक्स लिखते हैं, यदि हम इफ वी राइट द लेटर ऑफ अल्फाबेट एक्स, तो एक्स का क्रॉस होता है, देन हाउ मेनी एंगल्स आर फॉर्म, कितना एंगल फॉर्म होता है जयंत? जयंत, क्वेश्चन गोज टू जयंत। कैन लिसन माय क्वेश्चन जयंत? नो। सर जेम्स क्लास में नहीं है। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट तपन तान्या। तपन तान्या, तपन तान्या, आई हैव कॉलिंग यू 2 or 3 times. नेक्स्ट सार्थक गर्ग। सार्थक गर्ग। Yes, sir. Sir, please repeat the question. ओके, Sir, please repeat the question, sir. यस यस, Sir, mute नहीं हो रहे। ओके, क्वेश्चन है सार्थक गर्ग के लिए, सार्थक गर्ग के लिए है। अदर स्टूडेंट्स साइलेंट। क्वेश्चन इज इफ वी राइट द लेटर ऑफ अल्फाबेट एक्स, यदि हम लेटर ऑफ अल्फाबेट एक्स लिखते हैं, देन हाउ मेनी एंगल्स आर फॉर्म? सर आप आंसर दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं? यस नो में बताइए। नो सर। नो, देन क्वेश्चन गोज टू आकाश। आकाश राज, यस हाउ मेनी एंगल्स आर फॉर्म्ड? सर। रॉन्ग आंसर। देन क्वेश्चन गोज टू, सर मैं बोलूं 4। नो, क्वेश्चन गोज टू हरिओम कुमार। सर 5 एंगल। रॉन्ग, रॉन्ग, 5 एंगल रॉन्ग। Sir, now I tell the answer. सार्थक गर्ग। यस, बोलिए सार्थक गर्ग। 2 angles are formed. रॉन्ग, रॉन्ग आंसर। ये देखिए, हम आपके बोर्ड पे एक्स लिख रहे हैं, आपके सामने में एक्स है। 1 एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल, 4 एंगल। 4 angles. तो 4 एंगल्स आर फॉर्म, 4 एंगल्स आर फॉर्म। तो वेन Yes, sir. वेन 2 लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट, जब 2 लाइन आपस में इंटरसेक्ट होता है, देन हैविंग नो कॉमन आर्म बट अ कॉमन वर्टेक्स, एक ही कॉमन वर्टेक्स है इसका, तब यहाँ पे 4 एंगल होता है, जिसका ये 1 and 2 एंगल आर सेम एंड दिस एंगल आर सेम। दिस इज कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल, Sir, मैंने बोला था 4 angles. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स शुड बी इक्वल, इक्वल होना चाहिए, इक्वल होता है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। दिस इज द पॉइंट ऑफ योर दिस वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, यू मस्ट राइट इन योर कॉपी। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। वर्टिकली अपोजिट एंगल जो है वह ऑलवेज इक्वल होते हैं, ठीक है ना? नाउ Yes, sir. नो कंप्लीमेंट्री एंगल्स। कंप्लीमेंट्री एंगल, माही कुमारी, माही कुमारी, कंप्लीमेंट्री एंगल। नो, मैंने 2 बार कॉल किया, आंसर नहीं आया। पृथ्वी संगम, कंप्लीमेंट्री एंगल्स। 2 angles whose sum is 90 degrees. Okay. called complementary. ओके, 2 एंगल जिसका सम 90 डिग्री हो जाए तो वो कंप्लीमेंट्री, एंड 2 एंगल्स
whose sum is 180 degree, then called supplementary. So we can say that the difference of complementary and supplementary angles is, compलीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स में क्या डिफरेंस है, यू कैन सी फ्रॉम दिस बुक, आप इस बुक में भी देख सकते हैं. complementary angles, two angles whose sum is 90 degree called complementary angles. सप्लीमेंट्री में ये देखिए, ये दोनों एंगल सम करने पे 180 आ रहा है. टू एंगल्स वी राइट हेयर, two angles whose sum is 180 degree called supplementary angles. So all of you write and learn the definition with diagram of today's topic and do worksheet 2. If you have doubt, then you will must ask on next class. Next class we will continue worksheet 1 and 2. कल के क्लास में भी हम लोग वर्कशीट 1 एंड 2 में ही कंटिन्यू करेंगे. बिकॉज इफ यू हैव डाउट टू सॉल्व वर्कशीट 1 एंड 2, देन यू विल मस्ट आस्क ऑन नेक्स्ट क्लास. ओके, थैंक्स.